যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম দে। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা চৈতন্য চরিতামৃতের অন্তলীলায় আছি, অষ্টদশ পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 83 থেকে কন্টিনিউ করব। চৈতন্য চরিতামৃতম অন্তলীলা 18.83 অনওয়ার্ডস। হরে কৃষ্ণ প্রভু, দণ্ডবত প্রণাম। হরে কৃষ্ণ। 83 নম্বর শ্লোক। পট্ট বস্ত্র অলঙ্কারে সমর পিয়া সখী করে, শুষ্ক শুক্ল বস্ত্র পরিধান, শুক্ল বস্ত্র পরিধান। পট বস্ত্র অলঙ্কারে সমর প্রিয়া সখী করে, স্লোলি শুক্ল বস্ত্র পরিধান, সূক্ষ্ম শুক্ল পরিধান। মিউট সুনীতি মাতাজি। কৃষ্ণ লইয়া কান্তা গণ কইলা জলাপগাহন, জল কেলি রচিলা সুঠাম, জল কেলি রচিলা সুঠাম। কৃষ্ণ লইয়া কান্ত গণ কইলা জল গগন, জল কেলি রচিলা সুঠা, জল কেলি রচিলা সুঠা। ओके, गोपिकारा सब कल्पना कीजिए, यमुना के तट पर सब खड़े हैं, देख रहे हैं भगवान गोपी लोग के साथ जल में श्रीमती राधा के साथ केली कर रहा है। गोपिकारा तादेर पट्टबस्त्र এবং অলংকার সখীদের হাতে দিয়ে শুষ্ক শুক্ল বস্ত্র পরিধান করলেন। ওকে, सो दे चेंज्ड देयर ड्रेस फ्रॉम पट्टवस्त्र। पट्टवस्त्र का क्या लिखा है हिंदी में, शशि माता जी? रेशमी वस्त्र। ओके, और वो उसे क्या, वो छोड़कर क्या पहना? शुष्क वस्त्र, एकदम पतला सफेद वस्त्र। ओके, ऐसे ड्रेस चेंज कर ली और करके किन के हाथ में दिया सर? ये सब अलंकार वो सखी लोगों का हाथ में दिया। जो लोग शायद पार में खड़ा था, यमुना के पार में, उन लोग के हाथ में दे दिए। তখন কৃষ্ণ তার প্রিয়তমা গোপীদের নিয়ে স্নান করার জন্য জলে নামলেন এবং যমুনার জলে অতি সুন্দরভাবে জলকেলি করতে লাগলেন। ওকে, एक सेकंड। अगला श्लोक। सखी हे देखो कृष्णेर जल केली रंगे। अनम्यूट करके बोलिए माता जी, कौन है नेक्स्ट? महामंजरी माता जी। नहीं है तो फिर नेक्स्ट बोलते रहिए, कौन है नेक्स्ट? चंदा माता जी। शंभु प्रभु जी, सची सुतानंद प्रभु जी। सखी हे देखो कृष्णेर जल केली रंगे। সখী হে দেখো কৃষ্ণের জল কেলি রঙ্গ, কৃষ্ণ মত্ত করি বড় চঞ্চল কর পুষ্কর। কৃষ্ণ মত করি বড় চঞ্চল কর পুষ্কর। গোপীগণ করি নির সঙ্গে
গোপীগণ করি নিরসঙ্গে। গোপীগণ করি নিরসঙ্গে, গোপীগণ করি নিরসঙ্গে। হে সখী, শ্রীকৃষ্ণের আনন্দময় জলকেলি দর্শন করো। ওকে, হে সখী, শ্রীকৃষ্ণের তো দর্শন করো। সো হ্যাঁ, এক সেকেন্ড। তো মহাপ্রভু তো সখীদের সঙ্গে পারে আছে না, ঠিক না? মহাপ্রভু তো সখীদের সঙ্গে পারে আছে, তো উনি সখীদের বলছেন দেখো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কা জল কেলি। আগে সুচিত প্রভু, সুভাষ প্রভু বলুন আগে। কৃষ্ণের চঞ্চল কর যুগল, পদ্ম ফুলের মতো আর সে মদ্যমত্ত গজগজের মতন হস্তিনী সদৃশ গোপিকাদের সঙ্গে মহারঙ্গে জলকেলি করছে। सो एनालॉजी, एक एक एनालॉजी समझना पड़ेगा, क्योंकि बाद में कहा होता फोटो आ सकता है ना। কৃষ্ণের চঞ্চল কর যুগল পদ্ম ফুলের মতো, भगवान का हाथ लाइक लोटस फ्लावर, बहुत चंचल है। আর সে মদমত্ত গজরাজের মতো হস্তিনী সদৃশ, হস্তিনী कौन है? হস্তিনী সদৃশ গোপিকাদের। तो भगवान गजराज हो गया और बाकी सब हस्तिनी गोपिका लोग हो गया। মহারঙ্গে জল কেলি করছে। ওকে, অল এলিফেন্টস লাইক প্লেইং ইন ওয়াটার, यमुना के वाटर। अगला श्लोक। ओ, 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 ओ। How to pronounce this? আরম্ভিলা জল কেলি, অন্ন হন্নে জল ফেলা ফেলি, হুড়াহুড়ি বর্ষে জলধার, হুড়াহুড়ি বর্ষে জলধার। নেক্সট। अशोक मिश्रा प्रभु जी। আরম্ভিলা জল কেলি, অন্নে হন্য জল ফেলা ফেলি, হুড়াহুড়ি বর্ষে জলধার, হুড়াহুড়ি বর্ষে জলধার। সবে জয় পরাজয়, নাহি কিছু নিশ্চয়, জল যুদ্ধ বারিল অপার, জল যুদ্ধ বারিল অপার। তবে জয় পরাজয়, নাই কিছু নিশ্চয়, জল যুদ্ধ বাড়িল পার, জল যুদ্ধ বাড়িল পার। বর্ষে স্থির তড়িৎ গণ, সিঞ্চে শ্যাম নব ঘন, বর্ষে স্থির তড়িৎ গণ, সিঞ্চে শ্যাম নব ঘন। ঘন বর্ষে তড়িৎ উপরে, ঘন বর্ষে তড়িৎ উপরে, ঘন বর্ষে তড়িৎ উপরে, ঘন বর্ষে তড়িৎ উপরে। সখী গণের নয়ন, তৃষিত চাতকী গণ, সেই অমৃত সুখে পান করে,
সেই অমৃত সুখে পান করে। সখী গণের নয়ন তৃষিত চকত গণ সেই অমৃত সুখে পান করে, সেই অমৃত সুখে পান করে। আচ্ছা প্রভু আমি পড়ছি একটু, বুঝতে বুঝতে ভেঙে ভেঙে পড়তে হবে। শ্লোকার্থ, তাদের জলকেলি শুরু হলো। ওকে, অল এলিফ্যান্ট ফাইটস। তারা একে অপরের গায়ে জল ছোটাতে লাগলেন। সেই প্রবল জল বর্ষণে কে জিতলো কে হারলো তা বোঝার উপায় ছিল না। এইভাবে প্রবল জল যুদ্ধ হতে লাগলো। স্থির তরিতের মতো गोपिकारा। स्थिर तरित का हिंदी क्या है शशि माता जी? साउंड नहीं आ रहा है माता जी का। बिजली की स्थिर रेखाओं जैसी। ओके, স্থির তরিতের মতো গোপিকারা নব ঘন শ্যাম, নতুন ঘন ডার্ক ক্লাউড কৃষ্ণকে জল বর্ষণ করে সিঞ্চন করতে লাগলেন। ওকে, আবার শ্যাম রূপ নব ঘন পুনরায় গোপীরূপী তরিত সমূহের উপর জল বর্ষণ করতে লাগলেন। সখীদের নয়ন তৃষ্ণার্থ চাতক পাখির মতো সেই অমৃত পান করতে লাগলো। ओके, जब भगवान ने फेंका पानी तो सखी लोग पीने लगा, चातक पक्षी जैसा। हरी हरी। प्रथमे जल प्रथमे যুদ্ধ জলাজলি তবে যুদ্ধ করা করি, তার পাছে যুদ্ধ মুখা মুখী, তারও পাছে যুদ্ধ মুখামুখি। हाँ मंजरी माता जी। कौन सा श्लोक हो रहा मैं समझ नहीं। 87 है 87 তবে যুদ্ধ হৃদারিদি তবে হইল রদারদি, তবে হইল যুদ্ধ নখানখি, তবে যুদ্ধ তবে হইল যুদ্ধ নখানখি। माता जी आप पढ़िए, मेरे को সহস্র করে জল সেকে সহস্র নেত্রে গোপী দেখে। সহস্র করে জল সেকে সহস্র নেত্রে গোপী দেখে। সহস্র পদে নিকট গমনে সহস্র পদে নিকট গমনে। সহস্র পদে নিকট গমনে সহস্র পদে নিকট গমনে। সহস্র মুখ চুম্বনে সহস্র বপু সঙ্গমে, গোপী নর্ম শুনে সহস্র কানে, গোপী নর্ম শুনে সহস্র কানে। সহস্র মুখ চুম্বনে সহস্র বপু সঙ্গমে, গোপী নর্ম শুনে সহস্র কানে, গোপী নর্ম শুনে সহস্র কানে। প্রথমে জল ছিটিয়ে যুদ্ধ হচ্ছিল, তারপর তারা হাতাহাতি করে যুদ্ধ করতে লাগলেন, তারপর মুখোমুখি যুদ্ধ হতে লাগলো, তারপর বক্ষে বক্ষে, তারপর দাঁতে দাঁতে এবং অবশেষে নখে নখে যুদ্ধ হতে লাগলো। ओके, ये सीक्वेंस आ सकता है काहुत में।
पहले क्या आगे ऊपर पीछे नीचे गिरी प्रथमे जल छिटे। अच्छा ठीक है, ऐसा कैसे युद्ध हुआ प्रभु जी? हरी हरी সহস্র হাতে জল ছেটানো হচ্ছিল, সহস্র হাতে, এবং গোপিকারা সহস্র নেত্রে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করছিলেন। সহস্র পদে তারা তাদের কাছে এসেছিলেন এবং সহস্র মুখে তারা তাকে চুম্বন করেছিলেন। সহস্র বপু তাকে আলিঙ্গন করেছিলেন এবং সহস্র কর্ণে গোপিকারা তাদের পরিহাস বাক্য শ্রবণ করেছিলেন। तार परिहास वाक्य क्या लिखा है शशि माता जी? उनके परिहास वचन, जोकिंग वर्ड्स। गोपियों ने हजारों काने से उनके परिहास वाले वचन सुने। कृष्ण राधा लइया बोले गेला कंठ। देखिए महाप्रभु सब पारे बसे দেখছেন আর এগুলো বলছেন, ঠিক না? মহাপ্রভু তো পারে সখীদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দেখছেন আর এগুলো বলছেন সখীদের। नाउ महाप्रभु अवतार हुए, कैसे भक्त लोग को बिहेव करना चाहिए, कैसे आदर्श भक्त कैसा होना चाहिए, इसका दृष्टांत देने के लिए। आदर्श भक्त कैसा होना चाहिए, ये सब भगवान का रास के लिए, ये सब भगवान का इंटीमेट पास टाइम देख के अप्रिशिएट करना चाहिए। ये शिक्षा देने के लिए महाप्रभु हम लोग को अवतरण हुए हैं। Not to participate, just to follow. Not to participate. Yes, पार्टिसिपेट अगर फॉलो करते करते अगर भगवान ने पार्टिसिपेट में ले लिया तो ओके, बट नेवर टू थिंक ऑफ पार्टिसिपेट, नेवर टू थिंक पार्टिसिपेटिंग especially like Krishna, that to never ever think. Appreciate all these pastimes of Supreme Lord. কৃষ্ণ রাধা লইয়া বলে গেলা কণ্ঠ লগ্ন জলে। कृष्ण राधा लैया बले गेला कंठ दधान जले। ছাড়িলা তাহা যাহা ছাড়িলা তাহা যাহা অগাধ পানি। 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 দেহ কৃষ্ণ কণ্ঠ ধরি ভাসে জলের উপরি। গজত হাতে জইছে কমলিনী। গজত খাতে জইছে কমলিনী। देह कृष्ण कंठ धरी भासे जलेर उपरी। गाजो खाते जैसे कमलिनी। गाछो त खाते जैसे गम कमलिनी। अभी भगवान क्या कर रहा है, कृष्ण बलपूर्वक श्रीमती राधा रानी के कंठ पर्यंत गभीर जले निये गेलेन। ओके, तो भगवान ने श्रीमती राधा रानी को पकड़ा और एकदम डीप वाटर में लेके गया। कहाँ तक? कंठ तक, टिल थ्रोट। এবং তারপর গভীর জলে তাকে ছেড়ে দিলেন। ওকে, শ্রীমতী রাধারানী তখন কৃষ্ণের গলা জড়িয়ে ধরে জলের উপর ভাসতে লাগলেন। इसलिए तो छोड़ दिया ना, तो श्रीमती राधारानी will try to balance her by holding Krishna, तो इसलिए छोड़ दिया। তখন তাকে হস্তি কর্তৃক উৎপাতিত পদ্মের মতো মনে হচ্ছিল। कैसा लग रहा था? हिंदी में पढ़िए, हस्ती কর্তৃক উৎপাতিত পদ্মের মতো। शशि माता जी,
किंतु उन्होंने कृष्ण का गला पकड़ लिया और पानी के ऊपर इस तरह तैरती रही मानो हाथी की सूंड द्वारा तोड़ा गया कमल का फूल हो। अच्छा, कति रूप का तो मैंने सूर को जो कमल उखाड़ लेता है वैसा लगा। अच्छा, तो हाथी का सुर कृष्ण है और कमल है श्रीमती राधा रानी, है ना? ऐसे ही तो? जी प्रभु। हाँ हाँ, यस। तो गोप সুন্দরী কৃষ্ণ তত রূপ ধরি সবার বস্ত্র করিলা হরণে সবার বস্ত্র করিলা হরণে। যত গোপ সুন্দরী কৃষ্ণ তত রূপ ধরি সবার বস্ত্র করিলা হরণে সবার বস্ত্র করিলা হরণে। যমুনা জল নির্মল অঙ্গ করে ঝলমল সুখে কৃষ্ণ করে দর্শনে সুখে কৃষ্ণ করে দর্শনে। যমুনা জল নির্মল অঙ্গ করে ঝলমল সুখে কৃষ্ণ করে দর্শনে সুখে কৃষ্ণ করে দর্শনে। পদ্মিনী লতা সখী চয়ে কইল কারো সহায় অরঙ্গ হস্তে পত্র সমর্পিল তরঙ্গ হস্তে পত্র সমর্পিল। পদ্মিনী লতা সখী চয় কইল কর সহায় তরঙ্গ হস্তে পত্র সমর্পিল তরঙ্গ হস্তে पत्र समर्पिलो। परफेक्ट। देखिए ये सब श्लोक अगर फास्ट बोलने जाएंगे ना बोल ही नहीं पाएंगे क्योंकि वर्ड मिस हो जाएगा, एक दो छोटा छोटा फ्रेज मिस हो जाएगा। के हो मुक्त केश पाश आगे कोइलो अधोबास हस्ते के हो कुंकुली ধরিলো হস্তে কেহ কুঞ্চুলি ধরিলো। কেহ মুক্ত কেশ পাশ আগে গেল ধবাস হস্ত কেহ কুঞ্জলি ধরিল হস্তে কেহ কুঞ্জলি ধরিল। সেখানে যত গোপ সুন্দরী ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ তত রূপ ধারণ করে তাদের সকলের বস্ত্র হরণ করলেন। ওকে, যমুনার নির্মল জলে তাদের অঙ্গ তখন ঝলমল করছিল এবং মহা সুখে শ্রীকৃষ্ণ তাদের সৌন্দর্য দর্শন করছিলেন। পদ্মিনী লতা গোপীদের সখী, পদ্মিনী লতা গোপীদের সখী এবং তাই সে পদ্মপত্র দিয়ে তাদের সাহায্য করলো। ओके, सो पद्मिनी वृक्ष का जो लता है वो गोपी लोगों का सखी है, इसलिए क्या किया उन लोग ने, उन लोग अपना वृक्ष जो पत्ती है वो के गोपी लोगों का हाथ में दे दिया। गोपी ने उसको आवाज कट रहा है प्रभु जी, आवाज नहीं समझ में आ रही है।
ओके, हरे कृष्णा। बेटे कट रहा है प्रभु जी आवाज। अनूप शशि कट रहा है प्रभु जी आवाज, कट रहा है। कुछ सुनाई नहीं देता। ओके। कमललाल गोपियों के मित्र थे, जिन्होंने कमल की पत्तियां देकर उनकी सहायता की। कमलों ने यमुना की लहरों रूपी अपने हाथों से विशाल गोल पत्तियों को पानी की सतह पर फैलाकर गोपियों के शरीरों को ढक दिया। कुछ गोपियों ने अपने शरीर के अधोभागों को ढकने के लिए अपने बालों को खोलकर अपने सामने का वस्त्र बना लिया और अपने हाथ रूपी चोलियों से अपने स्तनों को ढक लिया। ओके, इंग्लिश में किसी का है? मेरा आवाज आ रहा है? अभी क्लियर आ रहा है आवाज? अभी आ रहा है। यस प्रभु जी, अभी आ रहा है। यस। अंग्रेजी में किसी का है? ज्योति माता जी है? एक बार बोलो। 91। 91। Okay, I'm reading. The lotus stems were, the lotus stems were friends of the gopis and therefore helped them by offering them lotus leaves. The Okay, lotus, please hold. Please hold. So Padmini Lata माने lotus stem. Okay. पढ़ो। ना पढ़बेन ना। तो लोटस स्टेम ने पानी में थे ना सब, तो लोटस स्टेम ने क्या किया? लोटस लीफ को दे दिया। वाह, लोटस स्टेम ने लोटस लीफ को दे दिया गोपी लोगों के पास फॉर कवरिंग देयर बॉडी। आगे। The lotuses pushed their large round leaves over the surface of the water with their hands. The waves of the Yamuna to cover the with their gopi hands body. with their hands माने स्टेम हो गया ना, लोटस का हैंड्स तो लोटस का स्टेम ही है। आगे। Some gopis undid their hair and kept it in front of them as dresses to cover the lower portions of their bodies and used their hands as bodies to cover their breasts. 1 second. To cover the lower portion लिखा है या upper portion with their hair? Some gopis undid their hair and kept it in front of them as dresses to cover the lower portions. लोअर पोर्शन हिंदी में तो हिंदी में क्या था शशि माता जी? अपर पोर्शन था ना? अधोभाग मतलब नीचे का ही हुआ। नीचे। अच्छा, ठीक है। ओके, आगे। वही है ना, to cover their हाँ, ठीक है। हाँ, लोअर पोर्शन ठीक है। ओके। the lower portions of their bodies and use their hands as bodices to cover their breasts. ओके, यस पंकज प्रभु। Hare Krishna Prabhu. Lotus leaves over the surface of water with their hands. The waves of the hands are treated. The Yamuna, the waves of the Yamuna are treated as hands. Not যমুনার জলে পদ্ম পাতা বিছিয়ে তাদের গোপী the waves of the Yamuna are hands. Yes. তাই সে পদ্মিনী লতা গোপীদের সখী এবং তাই সে মানে পদ্মিনী লতা যমুনার জল লেখেনি, তাই সে পদ্মপাত্র দিয়ে তাদের সাহায্য করলো বিকজ দ্য লোটাস স্টেম ওয়ার ফ্রেন্ড অফ গোপী। ঠিক है না, কিন্তু ইংরেজিতে তো ওই রকম লেখা আছে। फिर से पढ़िए इंग्लिश में क्या लिखा है? The lotuses pushed their large round leaves over the surface of the water with their hands, comma, the waves of the Yamuna. With their hands, the waves of the Yamuna. तो उसकी सहायता से हुआ प्रभु जी, यमुना की लहर की सहायता से जो कमल का पत्ता था। नहीं, यहाँ पे यमुना की लहरों को I got your point पंकज प्रभु। हाँ, उसमें तो लग रहा है कि वेव्स ही फ्रेंड है। अच्छा, हिंदी में क्या है? यही लिखा है प्रभु जी, कमलों ने यमुना की लहरों रूपी अपने हाथों से, मतलब लहर रूपी हाथों से, वही तो बोल रहा हूँ। हाँ, अच्छा, तो बंगाली में तो पूरा अलग लग रहा है। हिंदी में पहले ही लाइन में लिखा हुआ है कमललाल गोपियों के मित्र थे।
तो उसका जो कमल हुआ वो Confuse हो गया। हेल्प किया अपने वो लहरों से हेल्प हो सकता है लहर भी थोड़ा हेल्प किया, लहर भी थोड़ा हेल्प किया, दोनों हेल्प किया। गोपाल कमल का जो पत्ता था उससे वो गोपियों ने शरीर को ढक लिए। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन दोनों ने हेल्प किया लग रहा है, स्टेम एंड दोनों यमुना वेव दोनों ने। ओके, उसी के सहायता से तो पत्ता गया ना गोपियों के पास, फ्लोट करते करते, करेक्ट। यस। तो उस श्लोक में भी वैसे ही है, देखिए, तरंग डैश हस्ते पत्र समर्पिलो, तरंग रूपी हाथ से पत्तों को दिया। हाँ, तो वो वेव्स ने हेल्प किया जाने के लिए उनके पास। वेरी नाइस। 92 होगा अभी। कृष्णेर कलो राधा शाने गोपी गण शेखाने হেমাব্জ বনে গেলা লুকাইতে, হেমাব্জ বনে গেলা লুকাইতে। राधा सने गोपी गण शेखने हेमाब्ज बने गला लुकाईते, हेमाब्ज बने गला लुकाईते। আকণ্ঠ বপু জলে পৈশে মুখপাত্র জলে ভাসে, পদ্মে মুখে না পারি চিনিতে, পদ্মে মুখে না পারি চিনিতে। আকণ্ঠ বপু জলে পৈশে মুখ মাত্র জলে ভাসে, পদ্মে মুখে না পারি চিনিতে, পদ্মে মুখ না পারি চিনিতে। एक्चुअली चैतन्य चरितमृत का एकदम चरम में हम लोग पहुंच गए हैं। आप लोग समझ पा रहे हैं महाप्रभु जो ये श्लोक कोट कर रहे हैं, दीज आर चरम श्लोक एकदम। एक तो अंतलीला में एकदम अंत, इसके बाद महाप्रभु अप्रकट हो जाएंगे गोपी लोगों को, सबको जो रस आस्वादन करा रहे हैं उनके ऊपर कृतज्ञ होकर। इसके बाद तो महाप्रभु का प्रकट लीला। তখন শ্রীমতী রাধা রানীর সঙ্গে কৃষ্ণের কলহ হলো, ঝগড়া हुआ, এবং সেই সময় গোপিকারা শ্বেত পদ্ম বনে, श्वेत पद्म वन को क्या लिखा है, हेमाब्ज बने, हेम माने तो हेमाब्ज बने, श्वेत पद्म बने গিয়ে লুকিয়ে রইলেন। वो वाला वन जिसमें लोटस व्हाइट कलर का है। তখন তারা তখন আকণ্ঠ জলে নিমজ্জিত হয়েছিল। আকণ্ঠ জলে মানে कंठ तक, थ्रोट तक আকণ্ঠ জলে था, सिर्फ फेस ऊपर था, এবং তাদের মুখ মাত্র জলের উপর ভাসছিল। ठीक है, सब गोपी लोग उधर ऐसे हैं और श्रीमती राधा रानी को लेकर भगवान भाग गया और झगड़ा हुआ। सॉरी हाँ, क्या वो समझ रहे थे, झगड़ा सब जितनी गोपी लोग थी सब लोग तो जल में ही थी, राधा रानी भी वही थी। हाँ, करेक्ट। हाँ, यस राजीव प्रभु। जी हेम मतलब सफेद होता है क्या? हेम मतलब पहले हम लोगों ने पढ़ा था गोल्डन कलर। हेम व्हाइट लोटस, व्हाइट लोटस, आइस होता है। हिम मतलब आइस, हिम। राधा रानी का एक नाम है हेमांगी, क्योंकि गोल्डन कलर उनका कलर है इसलिए। तो हेम का मतलब पहले हम लोग पढ़े हैं गोल्डन कलर। यहाँ पर हेम माने व्हाइट लोटस। हेमाब्जो बने, हेम আব্জ। ওকে, ওকে। শ্বেত পদ্ম বনে লুকিয়েছিলেন, তখন তারা আকণ্ঠ জলে নিমজ্জিত হয়েছিল এবং তাদের মুখ মাত্র জলের উপর ভাসছিল। তখন বোঝা যাচ্ছিল না কোনটি তাদের মুখ
एवं कोनटी पद्म फूल। अरे ये क्या है, समझना पड़ेगा। सिर्फ मुंह ही दिखा जा रहा था ना, तो इसलिए कमल फूल और मुंह आसपास थे। এবং তাদের মুখ মাত্র জলের উপর ছিল, তখন বোঝা যাচ্ছিল না কোনটি তাদের মুখ এবং কোনটি পদ্ম ফুল। अच्छा समझ में आया। तो उस जलाशय में तो व्हाइट कलर का लोटस फ्लावर भी था। अभी लोटस फ्लावर देखिएगा, वो भी तो ऐसे ही है ना, सिर्फ मुंह ऊपर रखता है ना, लोटस फ्लावर ऊपर दिखता है ना। तो कौन सा, अभी गोपी लोग भी सुंदर थी, तो कौन सा मुंह है कौन सा लोटस फ्लावर है समझ में नहीं आ रहा था। सब तो फ्लोट कर रहा था ना सिर्फ कंठ से ऊपर। लोटस फ्लावर भी तो अपना कंठ से ऊपर फ्लोट कर रहा है, बाकी सब नीचे ही है, पानी के नीचे, सिर्फ फ्लावर ऊपर भासता है ना। आशा करता हूँ सबको like lotus flower. व्हाइट लोटस फ्लावर, यस। তখন শ্রীমতী রাধারানীর সঙ্গে কৃষ্ণের কলহ হলো এবং সেই সময় গোপিকারা শ্বেত পদ্মবনে গিয়ে লুকিয়ে রইলেন। अच्छा लुकिए रइलेन, ये तो हम लोग डिस्कस नहीं किया। तो भगवान के साथ झगड़ा हुआ भगवान श्रीमती राधा रानी का, और गोपी लोग सब व्हाइट लोटस जंगल में जाकर लुकिए रइलेन, माने वही कंठ बाहर, कंठ तक लुकिया रह रहा। प्रूफ क्या लिखा आपने, थोड़ा पढ़ के सुनाइए ना प्लीज। ओके, তখন তারা তখন আকণ্ঠ জলে নিমজ্জিত হয়েছে। हेम का हिंदी अर्थ हवा में मिले हुए भाप के अत्यंत सूक्ष्म अणु जो ठंडक के कारण पृथ्वी पे सफेद तह के रूप में जम जाते हैं, जिसको हिम बोला जाता है, बर्फ बोला जाता है, स्वर्ण खंड बोला जाता है और सोने का टुकड़ा। ओके, तो सब राइट है। ऑल आर राइट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। बर्फ नहीं होता है, बर्फ की चादर की तरह होता है, बर्फ नहीं होता है। ওকে, সো তখন তারা আকণ্ঠ জলে নিমজ্জিত হয়েছিল এবং তাদের মুখ মাত্র জলের উপর ভাসছিল। সব छुप गया, लुकिए ছিল। হ্যাঁ, व्हाइट लोटस बने लुकिए ছিল। क्यों? लोटस के साथ उन लोग मिल जाएगा, समझ नहीं आएगा कौन लोटस है कौन गोपी है। তখন বোঝা যাচ্ছিল না কোনটি তাদের মুখ এবং কোনটি পদ্ম ফুল। এ থা কৃষ্ণ, মাই গুডনেস, वेरी इंटरेस्टिंग चल रहा है। এ থা কৃষ্ণ রাধা সনে কইলা যে আছিল মনে, গোপীগণ অন্বেষিতে গেলা, গোপীগণ অন্বেষিতে গেলা। था कृष्ण राधा सने কইলা যে আছিল মনে, গোপীগণ অন্বেষিতে গেলা, গোপীগণ অন্বেষিতে গেলা। তবে রাধা সূক্ষ্ম মতি জানিয়া সখীর স্থিতি, সখী মধ্যে আসিয়া মিলিলা, সখী মধ্যে আসিয়া মিলিলা। তবে রাধা সূক্ষ্মমতি জানিয়া সখীর স্থিতি, সখী মধ্যে আসিয়া মিলিলা, সখী মধ্যে আসিয়া মিলিলা। অন্য গোপীদের অগোচরে কৃষ্ণ রাধারানীর সঙ্গে তার মনের ইচ্ছা মতো আচরণ করলেন। হিন্দি में क्या है माता जी? इन एब्सेंस ऑफ अन्य गोपियों की अनुपस्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी के साथ स्वतंत्र होकर इच्छा अनुसार व्यवहार किया। शायद इसीलिए सब गोपी लोग छुप गया, so that कृष्ण कैन बी विथ राधा रानी एंड दे कैन बिहेव नॉर्मली। सबके साथ सामने जो नहीं हो सकता है वैसे कर सकते हैं, है ना। গোপীরা যখন তাদের খুঁজতে লাগলেন, ও নো নো নো, দে ওয়ার ট্রাইং টু ফাইন্ড देम। গোপীরা যখন তাদের খুঁজতে লাগলেন তখন সূক্ষ্ম বুদ্ধিমতী রাধারানী তাদের সখীদের অবস্থা বুঝতে পেরে তাদের সঙ্গে এসে মিলিত হলেন।
देखिए शी इज सो कंसिडरेट, कितना कृपामयी है। ऐसा नहीं कि हाँ, हिंदी में क्या है माता जी? जब गोपियां कृष्ण की खोज करने लगी तो श्रीमती राधा रानी अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि वाली होने तथा अपने सखियों की स्थिति जानने के कारण तुरंत ही जाकर उनके बीच में मिल गई। सूक्ष्म बुद्धि का अर्थ क्या है? मतलब बहुत महीन बुद्धि वाली थी कि सबके दिल की बात भी समझ ले। इंटेलिजेंट। यस यस। अच्छा, तीक्ष्ण बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि, अच्छा, तेज, तेज इंटेलिजेंस, ओके, एम्पैथेटिक। নীলাব্জে হেমাঞ্জে সরি যত হেমাব্জ জলে ভাসে, হেমাব্জ মানে হোয়াইট লোটাস, তত নীলাব্জ তারো পাশে, নীলাব্জ মানে ব্লু লোটাস, আসি আসি করো এ মিলন, আসি আসি করো এ মিলন। যত হেমাব্জ জলে ভাসে তত নীলাব্জ তার পাশে, আসি আসি করায় মিলন, আসি আসি করায় মিলন। नीलाब्जे हेमाब्जे ठेके, ओके, व्हाइट लोटस एंड ब्लू लोटस ठेक गया एक दूसरे को। युद्ध, अभी नीलाब्ज कौन है? कृष्णा। हेमाब्ज कौन है? सब गोपी। युद्ध होए प्रत्येके कौतुके देखे तीरे सखी गण, কৌতুকে দেখে তীরে সখী গণ। নীলাব্জে হিমাজ থেকে युद्ध है प्रत्येक, कौतुक देखे तीर सखी गान, कौतुक देखे तीर सखी गान। सो महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? जले যত শ্বেত পদ্ম ভাসছিল তত নীল পদ্ম তাদের কাছে এলো। सो भगवान ने विस्तार किया अपने आप को, जितना गोपी है उतना। নীল পদ্মের সঙ্গে শ্বেত পদ্মের যখন স্পর্শ হলো তখন তাদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলো। যমুনার তীরে দাঁড়িয়ে সখীরা কৌতুक সহকারে তা দেখতে লাগলেন। ओके, जो जो खड़े थे महाप्रभु के साथ, महाप्रभु भी तो है उधर। आई थिंक यही रखते हैं। एक्चुअली छोड़ने का तो इच्छा नहीं कर रहे, इतना अच्छा है, लेकिन काहुत भी अभी 52 बज गया। ये बीच बीच में निकल जाना, ये भी वही है ना, जैसे वो पलक जैसा है ना, भगवान को दर्शन फिर नहीं कर पाएंगे, फिर 23 घंटा वेट करना पड़ेगा इस लीला को आगे बढ़ाने के लिए। 23 घंटा वेट करना पड़ेगा, इतना सुंदर लीला चल रहा है। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, বদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। चैतन्य रामकृष्ण की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, समवेत गौड़ीय भक्त वृंद की जय।